Material and devices. The valence. Today we will learn about the semiconductor uh, devices, material, and the devices. Let us start from the valence band. What is valence band? Valence band is the last band which is occupied where the valence electron is there. That means the valence band is the band made up of occupied molecular orbitals and is lower in energy than so-called conduction band. So valence band is lower in energy than the conduction band and is made up of occupied molecular orbitals. That means in valence band there is always electrons are present. Valence band can never be empty. It is generally completely full in semiconductors. When heated in semiconductors, it is generally filled. When heated, electrons from this band jump out of the band across the band gap and into the conduction band. So when heated, the intrinsic semiconductor, in intrinsic means in normal semiconductor which has not been doped. What intrinsic semiconductor means? The semiconductor which has not been doped yet. In that kind of semiconductor, what happens is that the valence band remains completely filled in, is completely full, and when heated, the electrons from this band, from the valence band, jump out of the valence band, that is jump out of the band that is valence band across the band gaps. So there is a band gap between valence band and the conduction band. It jumps across the band gap, and band gap is the region where no electron is present, and into the conduction band, making the material conductive. So only the electron in the conduction band takes part in electronic or electric conduction. Means electric current is we can get electric current only from the electrons that are present in the conduction band. So if it is heated, intrinsic or normal semiconductor which has not been uh, doped yet can have conductivity, because with heat electrons goes from valence band to the conduction band. Now conduction band is the band, अभी conduction band, let us switch to हिंदी. कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड वही है जो बैलेंस बैंड के नीचे है. कंडक्शन बैंड इज द बैंड, the conduction band बैलेंस बैंड के ऊपर है. दिस इज द बैंड which is the this is the band of orbitals. ये वो ऑर्बिटल का बैंड है जिसका एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड से ज्यादा है, एंड वो जनरली एम्प्टी रहता है. अगर हम लोग एनर्जी दे, इफ यू प्रोवाइड एनर्जी, it gets the electron gets jump from the valence band to the conduction band. In reference to conductivity in semiconductor, it is the band that accept electrons from the valence electron. So क्या होता है कि ये वही बैंड है जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता है, हम लोगों को मिलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होता है. सिलिकॉन लैटिस एटम्स आर सिलिकॉन एटम्स फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड. सिलिकॉन में चार मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एंड कैन क्रिस्टलाइज इनटू रेगुलर लैटिस बनाता है. एक रेगुलर साइज लैटिस बनता है. ये लैटिस किसको रिसेंबल करता है? रिसेंबल डायमंड. The illustration given in the simplified sketch, the actual crystal structure of silicon is the diamond lattice. ये डायमंड लैटिस के जैसे सिलिकॉन का लैटिस होता है. सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का ही लैटिस डायमंड की तरह होता है. दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये जब तक इसको डोप नहीं किया जाता, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और कैन कंडक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रूम टेम्परेचर में. क्योंकि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा है, इसलिए रूम टेम्परेचर में क्या होता है, रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा करंट ये कंडक्ट कर लेता है, पर उससे ज्यादा नहीं कर सकता है. प्योर सिलिकॉन इज नॉट
capable of conducting capable to conduct current very well. Pure silicon is not capable to conduct current very well. तो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कभी भी बहुत ज्यादा करंट कंडक्ट नहीं कर सकता. तो ये है लेटिस स्ट्रक्चर. इसमें ये डायमंड लेटिस के जैसे एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है. सिलिकॉन एक दूसरे के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डिफरेंट फ्रॉम दैन इंसुलेटर. एक सिलिकॉन इंसुलेटर क्रिस्टल से इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि because at any temperature above absolute zero there is a finite probability that an electron in the lattice will be knocked loose from its position. इसका मतलब है at at absolute zero जो लाने में हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है. एब्सोल्यूट जीरो इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर में भी ये प्रोबेबिलिटी रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स उसके लेटिस को छोड़ के वो जो इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का लेटिस बना हुआ है वहां से छोड़ के वो बाहर अपने कंडक्शन बैंड में चले जाए, लिविंग बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कॉल्ड होल. और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया और पीछे एक होल रह जाता है. If the voltage is applied, then electron and hole can contribute to a small current flow. अगर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से में तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है. Intrinsic semiconductor, the conductivity of semiconductor can be modeled in terms of band theory of solids. In band theory, band model of semiconductor suggests that ordinary temperature there is finite possibility of electrons can reach the conduction band and contribute to electrical conduction. Same चीज बोला गया है यहाँ भी कि इलेक्ट्रॉन ये चीज जो है ये बैंड थ्योरी को सपोर्ट करता है. मतलब कंडक्टिविटी में बैंड थ्योरी को सपोर्ट करता है. अब हम देख लेते हैं बैंड थ्योरी क्या है. एक्चुअली बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इसमें वही बोला गया है यूजफुल वे टू विजुअलाइज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. इसमें प्लॉट किया हुआ है इंसुलेटर के बीच कंडक्शन और वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है और सेमीकंडक्टर के बीच और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच थोड़ा सा गैप होता है. कंडक्टर में ओवरलैप कर जाता है, कोई गैप नहीं होता है. इंस्टेड ऑफ हैविंग डिस्क्रीट एनर्जी. अच्छा, क्या बोला गया है यूजफुल वेस्ट और टू विजुअलाइज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इज to plot the available energies of for electrons in the material instead of having discrete energies in case of free atoms. The available energy state form bands. ये जो available energy state है ये एक एक बैंड बना लेता है. The crucial to the conduction process is whether or not electron in the conduction electron are not there not there are electron in the conduction band. तो कंडक्शन तभी होगा जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा. वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहने से कोई कंडक्शन नहीं होता है. इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड आर सेपरेटेड बाय लार्ज गैप. इंसुलेटर में बहुत ज्यादा बड़ा गैप रहता है, इसलिए इंसुलेटर में ये एनर्जी को ओवरकम कर पाना मुश्किल रहता है. इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज सेपरेटेड बाय लार्ज गैप from conduction band. In metal in conductors like metals valence band and overlaps the conduction band. valence band और conduction band overlap हो जाता है. और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये गैप थोड़ा सा लगता है, स्मॉल गैप between valence band and conduction band and at a thermal or other excitation can breach the gap. मतलब थर्मल या कोई भी अदर एक्साइटेशन ये गैप को ब्रीच करके ऊपर चला जा सकता है कंडक्शन बैंड में जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है. इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है. विद a small gap, the presence of small percentage of doping material can increase conductivity dramatically. थोड़ा सा डोपिंग मटेरियल देने से हम लोगों को कंडक्टिविटी में बहुत फर्क हो जाता है. वो जो डोप करते हैं उसके बाद जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर. इसमें
जब डोपिंग नहीं हुआ होता है सेमी सिलिकॉन या जर्मेनियम में, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द बैंड थ्योरी इज फर्मी लेवल। एक और लेवल पैरामीटर है फर्मी लेवल। इस फर्मी लेवल क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप में ये फर्मी लेवल कंडक्शन और वैलेंस बैंड के साइड चला जाता है, बाकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये बीचों बीच रहता है। द टॉप ऑफ द अवेलेबल इलेक्ट्रॉन energy at Fermi level. The top of the available electron energy at low temperature. The position of Fermi level with relation to the conduction band is crucial in determining the electrical properties. इस conduction band के कितने नजदीक है, इससे electrical property डिटरमाइन होता है। अगर वैलेंस बैंड के पास है फर्मी लेवल, इसके मतलब है पी टाइप हो गया। एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास चला जाता है फर्मी लेवल। अच्छा, द टर्म इंट्रिंसिक हियर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर इंट्रिंसिक। प्योर मतलब इंट्रिंसिक सिलिकॉन, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सिलिकॉन एंड ड्रामेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप से डोपिंग से एन टाइप और पी टाइप बनता है। हम देखेंगे किस किस मटेरियल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सा मटेरियल इसको देने से ये एन टाइप और या पी टाइप बन जाता है, अभी वही देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सिलिकॉन में 4 है, जर्मेनियम में भी 4 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 4, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, सॉरी 14। तो 14 में 4 है, दो 2 और 10, 2 और 8 10 चला गया, और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रह गया। तो सिलिकॉन का 4 है, जर्मेनियम का कितना है, जर्मेनियम का भी 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया, 26, 26 प्लस 20 18, सॉरी 10 प्लस 8 18 प्लस 8 इज 26। हाँ 26, और 26 से दो ज्यादा 28, 30, 31, 32। तो जर्मेनियम का भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जर्मेनियम का बैलेंस ही कैसे ऐसे इतना आया, जर्मेनियम का हम लोग देख लेते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्मेनियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम क्या होगा, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वन वन में पहला सबशेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, तीसरे में 8, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो
देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, 2s और 2p में 8 इलेक्ट्रॉन रह गया, 10 इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर 3sp-d 3 में 3 नंबर सेल में रह गया है 6 और 2 8 और 10 18 प्लस 2 20 और 8 28 चला गया है हम लोगों के पास और बाकी रहा 2 2 रहा तो इस ये 2 4s और 4p में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 4p में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका लास्ट बैलेंस शेल में 4 नंबर सेल में हम लोगों के लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है, इसलिए ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन ओनली 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स। सो सो इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी जर्मेनियम का भी वैलेंसी 4 है। सोडियम बोल रहे हैं, सिलिकॉन का भी 4 है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का दोनों का 4 है। They they dictate the nature of chemical reaction of atom and largely determine the electrical nature of solid matter। तो वैलेंसी डिटरमाइन करता है केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल इंपॉर्टेंट है और इसलिए मेनली दो सिलिकॉन और जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना जरूरी है, दोनों का ही 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। सिलिकॉन का तो 2s थर्ड सब सेल में ही खत्म हो जाता है, लेकिन जर्मेनियम का कहाँ तक जाता है, फोर्थ शेल में जाता है, फोर्थ नंबर ऑफ शेल में जाता है। The electrical properties of matter are pictured in terms of how much energy it takes to free the valence electron। तो electrical properties of matter वही होता है कितना एनर्जी चाहिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। डिफरेंस वैलेंस शेल सिलिकॉन के लिए देख लेते हैं, 4 है और एंड बोरॉन के लिए 3 है। बोरॉन का देख लो लास्ट शेल में 3 है, 3 और अंदर 2, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का 5 है। सिलिकॉन का 14 है, तो पहला शेल में 2, उसके बाद 8 10 हो गया, फिर लास्ट शेल में 4 और अभी एंटीमोनी का बात है तो एंटीमोनी का आपका आ जाता है एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर है 51। तो 51 में हम लोग यहाँ पहले में 2 फिर 8 फिर 18 फिर 18 18 18 36 36 और 10 is 36 plus 10 is 40 46 36 plus 10 is 46। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है, वो आउटर मोस्ट शेल में चला जाता है। इसलिए एंटीमोनी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बात नोट करने के लिए का है कि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब एक स्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ये एक्सेप्टर के टाइप तौर पे काम करेगा और एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में सिलिकॉन या जर्मेनियम में इसको डोप किया जाएगा उस स्ट्रक्चर को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प कर पाए। एंटीमनी से क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, whereas बोरॉन से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। Germanium and silicon in solid state electronics either pure silicon and or germanium may be used in as the intrinsic semiconductor which form starting point for fabrication। fabrication के लिए शुरुआत करते हैं किससे, जर्मेनियम या सिलिकॉन से। each has valence
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट जर्मेनियम at a given temperature have more free electrons at and a higher conductivity. जर्मेनियम के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मेनियम का साइज भी बड़ा है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है। एट अ गिवन टेम्परेचर हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड have more free electrons and have a higher conductivity. Silicon is by far widely used semiconductor for electronics, partly because it can be used at much higher temperature than germanium. जर्मेनियम के जर्मेनियम ज्यादा हाई टेम्परेचर में यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए सिलिकॉन को बाय फार प्रेफर किया जाता है जर्मेनियम के ऊपर। जर्मेनियम इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंड सिलिकॉन इज टेम्परेचर एफिशिएंट। मतलब बहुत ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में सिलिकॉन काम कर सकता है, जर्मेनियम बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने से ही ये एक कंडक्टर जैसा काम करना लग जाएगा जर्मेनियम। सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर फैब्रिकेशन बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। इस ये कारण के लिए सिलिकॉन को वाइडली यूज किया जाता है। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर दैट मेक्स them most useful for constructing electronic devices is that their conductivity may easily be modified by introducing impurities into their crystal. एक क्रिस्टल में थोड़ा सा अगर हम लोग पी टाइप या पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट क्या होता है? पेंटावैलेंट वही होता है, इसमें इस फिगर में हम लोगों ने देखा बोरॉन होता है ट्राइवैलेंट और एंटीमनी जैसा। एंटीमनी एक्चुअली बोरॉन का जो ग्रुप है उसमें बोरॉन सिर्फ अकेला नहीं है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये चार नहीं, एक 1 2 3 4 5, ये पांच एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके आउटर शेल में एक्चुअली मेनली चार ही यूज होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, ये चारों में से चारों का आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको ट्राइवैलेंट कहा जाता है। ये इसका वैलेंसी 3 है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये ट्राइवैलेंट है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी के तौर पे ये यूज किया जाता है। और एंटीमनी जिस ग्रुप में लाई करता है वो ग्रुप है ग्रुप 15, और बोरॉन जो ग्रुप में लाई करता है वो ग्रुप है ग्रुप 13। एंटीमनी के ग्रुप को फास्फोरस ग्रुप भी कहा जाता है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, को न्यूमोनिक्स है इसको रिमेम्बर करने का कि बोरॉन जो ग्रुप 3 का एलिमेंट है, जो एक इलेक्ट्रॉन लेने से ही वो उसका काम बन जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन लेने से जो एन एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, ग्रुप 13 का एलिमेंट है जो एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, वो उसका न्यूमोनिक है बिग AI गेव इन बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बिग AI गेव इन। इस न्यूमोनिक को मेमोराइज करने से हमें ये एलिमेंट्स का नाम याद रहेगा। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। अगर हम लोग ग्रुप 5 में चले जाएंगे तो वहां पे याद रखना पड़ेगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका मतलब है फास्फोरस, प्रोफेसर, इसका भी एक न्यूमोनिक है, प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट बुक्स या 22 सब, लास्ट में से बिस्मथ को याद रखना पड़ेगा। प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये पांचों जो है, ये चारों जो है, ये चारों फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यहाँ 4 मतलब 13 में 4 और 15 ग्रुप 15 में भी 4, 4 पेंटावैलेंट, 4 ट्राइवैलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ट्राइवैलेंट में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, इन चारों से
इन चारों में ये चारों अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में इंट्रोड्यूस किया जाए, डोपिंग किया जाए इन चारों से, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमेशा ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कम रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से वो लेगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इसको एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटी भी कहा जाता है। और एक इसको ट्राइवेलेंट या एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी कहा जाता है। पेंटावेलेंट और डोनर इम्प्यूरिटी किसको कहा जाता है? प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट बिस्मथ, प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट बिस्मथ, फॉस्फोरस आर्सेनिक सब्जेक्ट इज एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, सब्जेक्ट बिस्मथ Bi इज बिस्मथ, प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट टू बिस्मथ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए बिग AI गेव इन बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये ग्रुप 13 का है, ये गेव इन हो जाता है, ये छोड़ देता है, ये हमेशा एक्सेप्टर होता है, मतलब ये भीख मांगा होता है। ऐसे याद रखो कि ये भीख मांगता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर कहा जाता है। और ये शुरू होता है बोरॉन से, एल्युमिनियम से। बिग एआई गेव इन मतलब एआई के पास हिम्मत नहीं हुआ काम करने के लिए, इसलिए छोड़ दिया। बिग एआई गेव इन बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। और और एक चीज है, जो प्रोफेसर के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो प्रोफेसर असाइंड सब्जेक्ट टू किसको दिया है? टू बिस्मथ। ठीक है, इतना याद रखना। चलो, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर अभी देखना बाकी था। अच्छा, जर्मेनियम में 32 होता है। 32 मतलब है 2 8, उसके बाद 18, 2 8, 2 8 10 हो गया, प्लस 18 इज 28। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 8 और 4। 2 8 एंड 4 मींस टोटल 14, और इसमें भी टोटल 2 8 18, 2 8 18 is 28, 28 plus 4 is 32। 32 जर्मेनियम में भी रहता है, सिलिकॉन में 14, इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डोपिंग, the property of semiconductor that makes them useful for constructing electronic devices is that their conductivity may easily be modified by introducing into their crystal। इसका जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज मॉडिफाई किया जा सकता है आसानी से। किस तरह से? डोपिंग से। द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी और डोपेंट एडेड टू द इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक भी बोला जाता है। इसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी मिलाया जाए तो उसको एक्सेंट्रिक डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर। So addition of small percentage of foreign atom into the regular crystal of pure silicon and germanium provide dramatic changes in their electrical properties, producing n-type and p-type semiconductor। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है ये तो पढ़ लिया हम लोग ने। पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होता है, इसका एग्जांपल क्या है? एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। फास्फोरस प्रोफेसर अजाइंड सब्जेक्ट, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, प्रोफेसर अजाइंड सब्जेक्ट टू के किसको असाइन किया? बिस्मथ को, Bi। बिस्मथ भी एक इसमें से है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है? बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, उसके बाद बिग AI गेव इन फॉर इंडियम। तो ट्राइवेलेंट सब हमेशा लेता है, एक्सेप्टर होता है। ट्राइवेलेंट एक्सेप्टर होता है, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए पेंटावेलेंट को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ये डोनर है। ठीक है, हो गया। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा, कैसे पी टाइप बन जाएगा? जैसे इसमें इसमें एंटीमनी को ऐड किया गया है सिलिकॉन के साथ, देखो तो इसमें एक डोनर एंटीमनी क्या है, किसमें है? प्रोफेसर, प्रोफेसर के है, प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट, वही है ना? प्रोफेसर असाइन सब्जेक्ट मतलब ये एंटीमनी हमेशा डोनर के टाइप में रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना
और एन टाइप से एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर गया तो वो बन जाएगा एन टाइप। वो एक इलेक्ट्रॉन लैटिस में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा, और इसको इस इम्प्योरिटी को ऐड करने के वजह से क्या हो जाएगा, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग बोरॉन यूज कर सकते हैं, बोरॉन बिग ए आई गेव इन। तो बोरॉन में क्या होता है, एक होल रह जाता है, वो होल सिलिकॉन के साथ, वो जो होल रह गया ना, वो होल एक इम्प्योरिटी के तौर मतलब वो बोरॉन को एज ए इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस किया जाता है सिलिकॉन लैटिस में, तो वो होल कंडक्ट करेगा। कैसे कंडक्ट करेगा, उसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक होल आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से होल आगे बढ़ता जाएगा। The addition of trivalent impurities such as boron and aluminum and or gallium, boron, aluminum, gallium, big Ai gave in or indium in intrinsic semiconductor creates deficiency of valence electron called holes. Deficiencies of valence electrons called holes. Deficiency of valence electrons, एक valence electrons कम रहेगा, उसको hole कहा जाएगा। It is typically used typical to use B2H6 diboron gas to diffuse boron in the silicon material. So क्या यूज किया जाता है, डाइबोरेन गैस B2H6, B2H6 डाइबोरेन गैस यूज किया जाता है बोरॉन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिलिकॉन लेटिस में। बैंड्स बैंड्स ऑफ डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब कंडक्शन और वैलेंस बैंड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, बैंड थ्योरी अब कुछ और बोलेगा एन टाइप ऑफ और पी टाइप के लिए। The application of band theory to n-type and p-type semiconductor shows that extra levels have been added to the impurities, added by the impurities. एक एक्स्ट्रा लेवल ऐड हो गया क्योंकि हम लोग ने एक impurity ऐड किया। In n-type material there are electron level, energy level near the top of the band gap so that they can be easily excited into the conduction band. In p-type material, extra holes in the band gap allow excitation of valence band electrons, leaving mobile holes in the valence band. So, application of band theory to n-type and p-type semiconductor shows that extra levels have been added by the impurities. In n-type material, there are electron energy levels near the top of the band gap so that they can be easily excited into the conduction band. अच्छा, in n-type material, electron energy में near the top of the band gap. अच्छा, बैंड गैप के थोड़ा ऊपर ही, बैंड गैप के थोड़ा ऊपर ही होता है क्योंकि थोड़ा so that they can be easily excited into the conduction band. In n-type material there are electron energy level near the top of the band gap so that they can be easily excited into the conduction band. In p-type material, extra holes in the band gap allow excitation of valence band electrons, leaving mobile holes in the valence band. मोबाइल होल रह जाता है वैलेंस बैंड में, और इसमें भी इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मोबाइल होल्स कहाँ रहेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा। और इसमें देखो, वैलेंस बैंड में मोबाइल होल जाता है, फर्मी लेवल पी टाइप के लिए फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के तरफ होता है, एन टाइप में कंडक्शन बैंड की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से एन टाइप में, बैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वहीं से कंडक्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे वैलेंस बैंड में पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में वैलेंस बैंड में होल्स कंडक्ट करता है, कंडक्शन बैंड में कुछ कंडक्शन नहीं होता है। बैलेंस बैंड में कंडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ होल्स, एक होल मूव करता रहता है। तो बैलेंस बैंड के नियर फर्मी लेवल होता है। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities into intrinsic semiconductors। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया। टू अल्टर देयर प्रॉपर्टीज, नॉर्मली ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट्स
are used to dope silicon and germanium with intrinsic semiconductor is when the intrinsic semiconductor is doped with trivalent impurity is called p type semiconductor. ट्राइवेलेंट से अगर डोप करेंगे तो उसको p टाइप बोला जाएगा, अगर पेंटावेलेंट से करेंगे तो n टाइप बोला जाएगा. The p stand for positive, which means the semiconductor is rich in holes or positive charged ions. When we dope intrinsic semiconductor with pentavalent impurities, pentavalent क्या क्या है? Professor assign subject bis to bismuth, phosphorus, pentavalent है phosphorus, assign is phosphorus, arsenic, bis, phosphorus, arsenic, उसके बाद है SB is subject is SB antimony फिर bismuth, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. N type semiconductor, phosphorus, arsenic, N type semiconductor, um, N type semiconductor पेंटावेलेंट से बनता है और p टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ट्राइवेलेंट से. ट्राइवेलेंट में कौन कौन सा है? बिग AI गेविन, बिग मतलब है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम फिर इंडियम. एन टाइप डोपिंग और ये हो गया p टाइप कोटिंग डोपिंग. p टाइप in case the case is no difference in germanium between same as silicon. However, some properties do differ, which makes germanium-based device used in certain application and silicon device used in other application. जर्मेनियम और सिलिकॉन में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी सब सेम है. Fermi level is the energy level at which 50% of the available quantum states are filled by electron. फर्मी लेवल वही एनर्जी लेवल होता है जहां 50% जिसमें प्रोबेबिलिटी 50% है क्वांटम स्टेट्स का एनर्जी से इलेक्ट्रॉन से फिल होने का प्रोबेबिलिटी है 50%. It was named after the famous physicist Enrico Fermi, who has significant hand in developing the atom bomb. Fermi ने कॉन्सेप्ट दिया है एनर्जी लेवल का. फर्मी का एनर्जी लेवल 50% चांस है क्वांटम लेवल स्टेट फर्मी लेवल के ऊपर रहने का और इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन रहने का चांसेस 50% रहता है फर्मी लेवल के नीचे. हाँ, Fermi level relates to the probable location of electrons in the valence band. बैंड डायग्राम में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये फर्मी लेवल तय करता है. Fermi level, if you are looking for the band diagram of the substance, usually semiconductor, the Fermi level tells you where the average electron is. Average कहाँ पे electrons है. For metals, the Fermi level lie in the conduction band. मेटल के लिए फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड है में रहता है. इंसुलेटर में फर्मी लेवल लाई इन द वैलेंस बैंड एंड फॉर सेमीकंडक्टर इस कहाँ लाई करता है बैंड गैप में. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर मेटल कंडक्शन बैंड में रहता है फर्मी लेवल, इंसुलेटर रहता है वैलेंस बैंड में और सेमीकंडक्टर कहाँ रहता है बैंड गैप में. माने दोनों के बीच. बैंड गैप किसके बीच में है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप पाया जाता है. Fermi level semiconductors are unique because of their Fermi level lies in the band gap which cannot contain electron. Semiconductors are unique because the Fermi level lies in the band gap which cannot contain electron. Electron band balance Fermi band gap में रहता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है. This is however does not prevent statistical location of Fermi level lying in the band gap. तो बैंड गैप में तो कोई इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं कर सकता, तो क्यों बैंड गैप के बीच में बैंड गैप के बीच में से फर्मी लेवल जाता है. अगर फर्मी लेवल बैंड सेमीकंडक्टर में बैंड गैप के बीच में जाता है, इसका कारण है सिंपल स्टैटिस्टिक्स बोलता है इसलिए जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि बैंड गैप में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बट प्रोबेबिलिटी है 50% चांसेस है कि बैंड गैप के नीचे इलेक्ट्रॉन मिलेगा.
Note that how valence band is full of electrons and then relatively few electrons lie in the conduction band, placing the Fermi level in the band gap. It is worth mentioning that when a piece of semiconductor or a substance is at equilibrium with no net current or field applied, then the Fermi level will be flat. अगर कोई करंट या वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो फर्मी लेवल एकदम फ्लैट रहेगा. End of the lecture.